हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर हब। तो फ्रेंड्स, आज आम ब्रिटिश लिटरेचर इयरली 20th सेंचुरी कॉन्सेप्ट उपरे बेसिकली डिस्कस करिबा। तो चलतु वीडियोटी को लेट न करी स्टार्ट करिबा। प्रथम इंट्रोडक्शन ले देजी। इन द इयरली 20th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर अंडरवेंट significant changes reflecting the tumultuous times। याको आम ओडिया बुझा। विंश शताब्दीर प्रारंभ में ब्रिटिश साहित्य अशांत समय प्रतिफलित होई गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन होइतिला। The period saw the aftermath of World War First, societal shifts and emerging modernist trends। बुझिबा यही अवधि प्रथम विश्वयुद्ध जहाँकि सामाजिक परिवर्तन एवं उदयमान आधुनिकवादी धारा को देखैथिला। ओके, राइटर्स लाइक वर्जिनिया वुल्फ एंड D.H. Lawrence explored physiological complexities, while T.S. Eliot and Ezra Pound embraced modernist poetry। बुझिबा यह व्यतीत मध्य वर्जिनिया वुल्फ एवं D.H. लॉरेंस को परी लेखक माने मानसिक जटिलता अनुसंधान करिथिबा बेले T.S. एलियट एवं एजरा पाउंड आधुनिकवादी कविता ग्रहण मध्य करिथिले। क्लियर। ओवरऑल दी एरा मार्क्ड ए डिप्रेचर फ्रॉम विक्टोरियन नॉर्म्स शोकेसिंग ए डाइवर्सी लिटरेरी लैंडस्केप। इट मीन्स एवं यह सामग्रिक भाव जुगर एक विविध साहित्यिक दृश्य प्रदर्शन करी विक्टोरियन आदर्श को विदाय को चिन्हित करथिला। एबे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कशन करिया। Early 20th century British literature was marked by the transition from Victorian ideals to modernism, influenced by World War First. The Edwardian era explored social changes, while the interwar period saw the emergence of modernist movements like Bloomsbury and the Edwardian generation addressing war, societal shifts and political themes। यार माने बुझिबा कौन कहला जे विंश शताब्दीर प्रारंभ में ब्रिटिश साहित्य प्रथम विश्वयुद्ध द्वारा प्रभावित होइथिबा विक्टोरियन आदर्शरू आधुनिकता को परिवर्तन द्वारा चिन्हित होइथिला, जहा फल कि युद्ध सामाजिक परिवर्तन एवं राजनीतिक विषय वस्तु गुड़िक हेउछि एहर प्रमुख थीम। एबे हमें थीम्स डिस्कशन करिया। फर्स्ट कौन देछि थीम्स ना मॉडर्निज्म। राइटर्स लाइक T.S. Eliot and Virginia Woolf embraced modernist technique, experimenting with narrative structures, language and perspective to reflect the factual and changing world after World War First। यार मान प्रथम बुझिबा कौन देछि ना कौन कहले कि ना आधुनिकता। मॉडर्निज्म माने आधुनिकता। जे लेखक T.S. एलियट एवं वर्जिनिया वुल्फ आधुनिकवादी लेखिबार शैली ग्रहण करथिले। यह व्यतीत विशेषकर युद्ध पर भंगा एवं परिवर्तित जगत को प्रतिफलित करने वर्णनाकारी संरचना, भाषा एवं दृष्टिकोण सहित परीक्षण करथिले। सेकेंड पॉइंट देछि वार एंड इट्स आफ्टरमैथ। The impact of World War First is evident in works that explore the trauma, disillusionment and loss experienced by individuals and society. Wilfred Owen's poetry is a poignant example। It means कौन कहला युद्ध एवं यार परिणाम, वार एंड इट्स आफ्टरमैथ तार परिणाम कौन ना प्रथम विश्वयुद्धर प्रभाव व्यक्तिविशेष एवं समाज द्वारा अनुभूत होइथिबा आघात, निराश एवं क्षतिर अनुसंधान रे स्पष्ट होइछि, जहाँकि
ଫ୍ରେଡ୍ ୱେଭେନଙ୍କ କବିତା ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। କ୍ଲିଅର। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା ବା ଥାର୍ଡ଼ ଥିମ୍ସ ଦେଲା କ'ଣ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ। ଅଥର୍ସ such as D.H. Lawrence delved into the societal shifts occurring during this period, examining issues like class dynamics, industrialization, and changing gender roles. It means ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ social changes। ଲେଖକମାନେ ଯେପରିକି D.H. Lawrence ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଥିଲା ନା ଶ୍ରେଣୀ, ଗତିଶୀଳ, ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ଭୂମିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କ୍ଲିଅର। ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବା 4 ନମ୍ବର ଥିମ୍ସ। ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ writing as seen in the works of James Joyce and Virginia Woolf became a notable technique. It aimed to represent the flow of thoughts and feelings in a character's mind। କ'ଣ କହିଲା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଚେତନାର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଯାହାକି ଚେତନା ଲେଖିବାର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଯେପରିକି ଜେମ୍ସ ଜୟେସ୍ ଏବଂ ୱେଲ୍ଫ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୌଶଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ଚରିତ୍ରର ମନରେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭାବନାର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ଆସିଛି କ'ଣ ନା କଲୋନିଆଲ ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ କଲୋନିଆଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ସ, ଏଇଟା ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବା 5 ନମ୍ବର ଥିମ୍ସ। With the British Empire at its height, writers like E.M. Forster and Rudyard Kipling explored themes related to colonialism and its impact on both the colonizers and the colonized। It means କ'ଣ କହିଲା ନା ଉପନିବେଶବାଦ ଓ ପୋଷ୍ଟ କଲୋନିଆଲ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଲେଖକ E.M. ଫ୍ରଷ୍ଟର ଏବଂ ରୁଡିୟାର୍ଡ କିପଲିଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏହି ଉପନିବେଶବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହାକି ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଉଭୟ କଲୋନାଇଜର୍ସ ଏବଂ କଲୋନାଇଜ୍ଡ ଉପରେ। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିମ୍ସ ଡିଷ୍ଟୋପିଆ ଆଣ୍ଡ ଏଲିଏନେସନ୍। ଦି ଡିଷ୍ଟୋପିଆନ୍ ଭିଜନ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟୁଚର as seen in George Orwell's 1984 reflects concerns about totalitarianism and the erosion of individual freedoms in society। ଏମାନେ ବୁଝିବା ନା କ'ଣ କହିଲା ଭବିଷ୍ୟତର ଡିଷ୍ଟୋପିଆନ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଜର୍ଜ ଓରୱେଲଙ୍କ 1984ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସମୁଦାୟବାଦତା ଏବଂ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବିଧାନ ବା ସ୍ୱାଧୀନତାର କ୍ଷୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ଓକେ କ୍ଲିଅର। ଏହାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମୋଷ୍ଟ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ରାଇଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ୱାର୍କସ୍। ଏଇ ୟାର୍ଲି 20th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ମୋଷ୍ଟ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଇଟର୍ସ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ୱାର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏଥିରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। In British literature during the early 20th century, some significant writers and their notable works include। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଭର୍ଜିନିଆ ଉଲ୍ଫ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଇଟର। ତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ୱାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା ନା ମିସେସ୍ ଡଲୱେ, ଟୁ ଦି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଲାଣ୍ଡୋ। ଏ ତିନିଟା ତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ୱାର୍କ ଭର୍ଜିନିଆ ଉଲ୍ଫଙ୍କର। ତାର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି D.H. ଲରେନ୍ସ। D.H. ଲରେନ୍ସ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫେସ୍ early 20th ସେଞ୍ଚୁରୀର। ତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ୱାର୍କ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ଲେଡି ଚେଟରଲେଜ୍ ଲଭର ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲଭର୍ସ ଦି ରେନବୋ। ଓକେ
थर्ड पॉइंट किए आसुँच एम फ्रस्टर तार फेमस वर्क गुड़ी कौन ना ए पैसेज टू इंडिया हावर्ड्स एंड ए रूम विथ ए व्यू तापर 4 नंबर पॉइंट किए आसुँच ना जेम्स जॉयस तांकर फेमस वर्क एलियसेस यूलिसेस ए portrait of the artist as a young man आउट हूँ दुब लिनर्स यापर आसुँच टी.एस. एलियट दि वेस्ट लैंड तांकर फेमस वर्क दि लव सॉन्ग ऑफ जे आल्फ्रेड प्रुफ्लेक तार आसुँच फॉर क्वेटेस्ट आउ तार 6 नंबर किए आसुँच ना जॉर्ज ऑरवेल जी कि लिखिं फेमस वर्क 1984 तांकर फेमस वर्क गोटे एनिमल फार्म गोटे आउटे डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंडन ओके क्लियर तापर आम एवं डिस्कसन करिए सम लिटरेरी मूवमेंट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट ए निहाती एग्जाम रे आपण माने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ले आपण आपको मेंशन करिवे देले भलो मार्क मिल परिबा आपनको तो देखिया कौन कौन सब लिटरेरी मूवमेंट ए समय रे हितला याली 20th सेंचुरी टाइम रे फर्स्ट आछि मॉडर्निज्म एटा टाइम पीरियड केते केते ना 1900 रो 1950 ए समय भितर जाउची कौन दे देखिया कैरेक्टराइज्ड बाय ए ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड स्टाइल्स modernist literature often reflected the fragmented and disillusioned World War I society. Prominent figures including T.S. Eliot, Virginia Woolf and James Joyce कौन कहला ना आधुनिकतावाद बा आधुनिक छड़ा केते 1900 रु 1950 ए भितर आछि कौन कहला ना पारंपरिक रूप एवं शैली रु एक विरति द्वारा वर्णित आधुनिकवादी साहित्य प्रायतः प्रथम विश्वयुद्ध परवर्ती समाज को खंड विखंडित एवं निराश करिथिला जहाँकि विशिष्ट व्यक्ति विशेषों मध्य टी.एस. एलियट एवं वर्जिनिया वुल्फ एवं जेम्स जॉयस अन्यतः अटंती माने से मैंने याली 20th सेंचुरी जो लिटरेरी वर्क फेमस वर्क गुड़ा थिला तारी मध्य यही सब को रिफ्लेक्ट करचंती बा यही सब थीम को लेकिन से लिखिंट क्लियर तापर 2 नंबर पॉइंट कौन आछि लिटरेरी मूवमेंट रे ना ब्लूम्सबेरी ग्रुप्स 1905 रु 1930 भितर आछि तो बेसिकली एटा कौन कहि ना ए ग्रुप ऑफ intellectuals including Virginia Woolf and E.M. Forster associated with the Bloomsbury area in London. They emphasized artistic and intellectual freedom influencing literature, art and criticism. देखिए कौन कहला ओडिया रे बुझिया ना ब्लूम्सबेरी ग्रुप एटा 1905 रु 1930 भितर ए पीरियड जाउची गोटे लिटरेरी मूवमेंट यह एक गोष्ठी जहाँकि वर्जिनिया वुल्फ एवं E.M. फॉस्टर को मध्य कला एवं समालोचना को प्रभावित करी सेमाने सौंदर्य एवं बुद्धि स्वाधीनता उपरे गुरुत्वारोप करथिले 3 नंबर लिटरेरी मूवमेंट जॉर्जियन पोएट्री ना एटा टाइम पीरियड केते ना 1910 रु 1936 मध्य एटा जाउची named after the region of King George V. This movement featured poets like Robert Brooke and Siegfried Sassoon. The poetry often celebrated rural life and traditional values, providing a contrast to the modernist work of the time. कौन कहला ना जॉर्जिया कविता
जहाँकि जाऊँगी 1910 रु 1936 मध्य एटा जाऊँगी टाइम पिरियड मध्य लिटरेरी मूवमेंटा कौन कहला ना राजा जॉर्ज भीଙ୍କ शासन पर नामित ଏହି आंदोलन रूपर्ट ब्रोक एवं सिगफ्रेड सेसन परी कवि माने स्थान पाइथिले। कविता प्रायतः ग्रामीण जीवन एवं पारंपरिक मूल्यबोध को पालन करी सेही समय आधुनिकतावाद कार्यगुड़िकर विपरीत प्रदान करथिला माने क्रिटिसाइज करथिला। यापर आम 4 नंबर लिटरेरी मूवमेंट देखिए कौन कही ना वार पोएट्री वर्ल्ड वार जो फास्ट होता से समय वार पोएट्रीटा बेसिकली परिचित थिला। तो पढ़िया पोएट्स लाइक वाल्फ्रेड वॉन्स एंड सिगफ्रेड सेसन डिपिक्टेड द हारेस realities of war, offering poignant and anti-war perspectives through their verses. It means कौन कहला ना जो वारटा ये समय किस ये वार पोएट्री टाइम रे किए बेसी फेमस प्रोमिनेंट फेस थिले राइटर भाव में ना वाल्फ्रेड वॉन्स आउ किए ना सिगफ्रेड सेसन ये दी जन लिखुले विशेषकर वार पोएट्री फेमस होता डिफरेंट दि हारास रियलिटीज ऑफ वार माने जो हारास रियलिटीज गोटे माने ह्यूमन टेंडेंसी ह्यूमन एस्पेक्ट्स रु देखिया गले केमती रियलिटी वारटा केमती गोटे भयावह माने भयंकर ऑफरिंग पाइग्नेंट एंड द एंटी वार आउ किस वार को गोटे आंटी कैरेक्टर आंटी माने आंटी बिहेवियर रूप में ये रिफ्लेक्ट कर सब लिटरेरी वर्क रे किए ना आमर सिगफ्रेड सेसन आउ किए ना वाल्फ्रेड वॉन्स लिटरेरी वर्क माध्यम देखी केमती वर्कटा गोटे आंटी कैरेक्टर बा आंटी बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर ह्यूमन टेंडेंसी बा ह्यूमन एस्पेक्ट रू एटा केमती गोटे भयंकर ताको ये रिफ्लेक्ट कर सी बुझिपारे। These movements played a crucial role in shaping the literary landscape of early 20th century British literature. এই মুভমেন্টটা কোন না গোটে ক্রুশিয়াল रोल बा गुरुत्वपूर्ण रोल प्ले करे कहा ना लिटरेरी लैंडस्केप अर्ली 20th सेंचुरी समय ये जो मूवमेंट गुड़ाक लिटरेरी मूवमेंट गुड़िक सब क्रुशियल रोल बा गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कर आम देखिए कनक्लूजन कौन कहला ब्रिटिश लिटरेचर इन द अर्ली 20th सेंचुरी showcases a dynamic interplay of modernist experimentation, societal critique, and exploration of identity, reflecting the aftermath of World War I and the evolving socio-political landscape. माने बुझिबा हमें कौन कहला ना विंश शताब्दीर प्रारंभ में ब्रिटिश साहित्य आधुनिकवादी परीक्षण सामाजिक समालोचना एवं परिचयर अनुसंधानर एक गतिशील आंतरिकता प्रदान करे जहाँकि प्रथम विश्वयुद्धर परवर्ती घटना एवं सामाजिक एवं राजनैतिक दृश्य को प्रतिफलित करिଥାଏ। तो फ्रेंड्स यदि वीडियोटी आपको यदि भल लगी था वीडियो द्वारा जदि आपको किसी मात्रा साहाय्य मिल पारि थाए ताहले वीडियोटी को लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट करने को भूलिए नहीं कारण ये वीडियो तैयारी करने बहुत मान परिश्रम करने पड़े आपण मैंने बुझीपारे माने हैंड रिटेन नोट लेखिकी तापरे माने पुणी ताको एक्सप्लेन करिकी अपलोड करवाटा केते कष्ट। तो यदि ये भाया हैंड रिटेन नोट पीडीएफ आपन यदि एक्सेस करने चाहते ताले आमर टेलीग्राम चैनल जॉइन करंतु लिटरेचर हब टेलीग्राम चैनल आपन को मिल जिवो डिस्क्रिप्शन रे आपन सेठी जाइकी लिंक रे क्लिक कले आमर जो टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्ट पळेबे। तो फ्रेंड्स रोची जय जगन्नाथ।